Welcome back to science class. Let's start our new chapter 6, our body part 1. इसके पहले हमारे यहाँ पे चैप्टर्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन देखी है. Now let's see about our body part 1. Before start our chapter, let's go through a quick video explaining this chapter. Our body has different parts that work in coordination to help us carry out various daily activities. Cells. A cell is the smallest structure of which all living things are made. Cells of the same size, shape, and function are grouped together to form a tissue. More than one type of tissues together form an organ. Organs. An organ performs a specific function. For example, our ears help us to hear, our nose helps us to smell, and our eyes help us to see. Organ system. A group of organs that work together to perform a particular task is called organ system. For example, mouth, food pipe, stomach, intestines, and anus help us to eat and digest food. Therefore, they form the digestive system. The skeletal system. The skeletal system is composed of bones which give shape and support to the body. They also protect internal organs of the body. The skull protects the brain. The ribs protect the heart and the lungs. The spine or the backbone holds up the neck and the head. Two or more bones are connected at joints. Joints allow us to twist or bend our body parts. The muscular system. The muscular system consists of muscles. The main function of the muscular system is to help in the movement of the body. The circulatory system. The circulatory system includes the heart, blood, and blood vessels. Blood vessels carry blood from the heart to different body parts and then back to the heart. The respiratory system. The system that helps with breathing is known as the respiratory system. It supplies oxygen to various parts of the body. The respiratory system comprises of the lungs, windpipe, throat, mouth, and nasal passages. Right breathing habits. We should always breathe in fresh air because it is rich in oxygen. We should always breathe through our nose, not our mouth. We should never cover our face while sleeping because then we will not get fresh air to breathe. The digestive system. The digestive system deals with digestion of food. Digestion is the process of changing the food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. Mouth, food pipe, stomach, large and small intestine, and anus are the organs that make up the digestive system. Digestion begins in the mouth. Here, the food mixes with the saliva and becomes soft. The teeth and tongue break up the softened food. It then moves down the food pipe into the stomach. From here, it goes into the small intestine. The digested food is taken in by the blood from the small intestine. Then it is transported to other parts of the body. The excretory system. Excretion is the process of removal of all wastes from the body. Urine, sweat, and carbon dioxide are our body wastes. Kidneys are the main excretory organs. They help to throw out urine. Our skin helps to eliminate sweat and lungs give out carbon dioxide. The nervous system. The main function of the nervous system is to control all other systems of the body. It controls actions like walking, seeing, listening, etc. The nervous system consists of the brain, spinal cord, and nerves. The reproductive system. The reproductive system helps to produce young ones. Life on the planet Earth goes on because of this system only. After this video, let's start our chapter about our body. इसके पहले हमने क्या देखा है? इसके बारे में animals, birds, and plants. Now let's see deep information about our body. Okay.
जैसे कि हमारी बॉडी जो है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पूरे पार्ट एक साथ आते हैं। जैसे कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे थे तो ऐसे होता है कि हमारे लेग्स बहुत थक गए हैं, उसे घर पर रख के हम जा सकते हैं? सो नहीं। जैसे कि अगर हम ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स उसमें एक होकर वो जो भी गेम है, जो भी खेल रहे हैं, हम उसे एक साथ बॉडी के हर एक पार्ट एक साथ वर्क करते हैं, तभी जाके वो वर्क कंप्लीट होता है। ओके, सो देखते हैं कैसे ऐसे डिफरेंट पार्ट का काम कैसे होता है। लुक एट द कंप्यूटर केयरफुली। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको केयरफुली देखना, उसके कौन से पार्ट होते हैं। मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, राइट। सो ये जो इसके डिफरेंट पार्ट है, बट कीबोर्ड है, बट अगर एक भी पार्ट उसमें नहीं है तो कंप्यूटर का वर्क हो पाएगा क्या? सो नहीं। जैसे कि ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का सीपीयू को, सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, राइट। माउस नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता है। उसी तरह से यू विल नोटिस दैट इट हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हर एक फंक्शन प्रॉपर्ली होने के लिए क्या जरूरी है, उसका हर एक पार्ट हमारे पास होना जरूरी है। उसी तरह से सिमिलरली our body has different parts that work in coordination to help us carry out various daily activities. हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती है, इसमें चलना है, उठना है, बैठना है, ईटिंग है, वॉचिंग है, जो भी है उसके लिए क्या है, जैसे कंप्यूटर का हर एक पार्ट एक साथ होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे बॉडी का भी हर एक पार्ट एक साथ होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिया है देखते हैं। When you play an outdoor game like badminton with your friend, एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पर। अगर हम बाहर कहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, सी योर हैंड्स, लेग्स, आईज एंड ब्रेन फंक्शन टुगेदर। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं सो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स है जो एक साथ होकर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमारे हैंड है, खेलते वक्त हमें क्या क्या जरूरी होता है, लेग्स है, देन आईज है, देन ब्रेन है। अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं या कोई सा भी अगर गेम हम खेल रहे हैं तो ब्रेन वर्क करना बहुत जरूरी है, उसी के साथ हैंड्स, लेग्स, आईज, ये सब जब एक साथ रहेंगे तभी हम ये गेम खेल पाएंगे। ये फंक्शन जब एक साथ, ये जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, इनका फंक्शन एक साथ होता है तभी जाकर हम वो गेम खेल पाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का एक एग्जांपल पहले ही यहाँ पर दिया गया है। ओके, द organs that perform these functions are the same in all of us। इसी तरह से हम में भी है, जैसे कि कंप्यूटर का हमने देखा है, देन ये बैडमिंटन का खेल खेलते वक्त हमने देखा है। अदर भी अगर हम घर में भी कुछ करते हैं, कुछ एक्शन हमारी होती है, तो उस एक्शन के लिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट क्या होता है, एक साथ वर्क करता है। ओके, हियर द आउटर अपीयरेंस डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे है, कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, कोई फैट है, कोई थिन है, तो यहाँ पर जैसे आउटलुक हर एक का कैसे होता है, अलग अलग होता है, बट इंटरनल जो पार्ट्स है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो क्या है, एक जैसे होते हैं। बाहर से पर्सन टू पर्सन कैसे होते हैं, दिखने में अलग होते हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि बाहर में जो दिखने का पार्ट जो होता है, सो इस तरह से जैसे शॉर्ट, टॉल, थिन, फैट, ऐसे हमने यहाँ पर देखा है, वो कैसे है, अलग है, बट जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हर एक ह्यूमन बीइंग का होता है, वो कैसे होता है, सेम होता है। जैसे हर एक को हार्ट है, लंग्स है। ओके, सो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है ह्यूमन बीइंग का, सेम होता है। ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट अवर बॉडी। सो हमारी इसी बॉडी के बारे में हम इस चैप्टर में ज़्यादा जानकारी लेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये मैंने अलग से हम आपकी जानकारी के लिए है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसे याद रखना है, तो अगेन एंड अगेन सवाल पूछा जाएगा कि ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, सो ये क्या है, अलग से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए
दिया गया है, हम जो आगे देखने वाले हैं वो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम, मतलब डिफरेंट सिस्टम्स हम देखने वाले हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन, देन मस्कुलर, स्केलेटन सिस्टम, अलग अलग हम ये देखने वाले हैं। तो ये कैसे बनते हैं, सो जैसे हम आगे देखने वाले हैं कि हमारे जो बॉडी में है, फर्स्ट क्या होते हैं सेल्स, देन सेल्स का ग्रुप मिलके क्या होता है टिश्यूज, टिश्यूज का एक समान सब ग्रुप मिलकर होता है ऑर्गन्स, एंड उस ऑर्गन से फिर क्या होता है एक सिस्टम, एंड इस सिस्टम से होता है ये ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये जो हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, सेल्स, सेल्स ये जो सबसे छोटा पार्ट है, ये हर एक क्या है उसकी ग्रुप से टिश्यूज होता है, देन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, आगे हम और देखने वाले हैं कि ऑर्गन सिस्टम कौन सा कहाँ से है। तो कैसे है, हर एक का अलग अलग सेल्स टिश्यू फॉर्म्स होते हैं, अलग ग्रुप होते हैं, उससे फिर ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं, एंड देन क्या होती है जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, एंड देन उससे क्या तैयार होती है हमारी ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये ह्यूमन बीइंग रेडी होता है। सेल यहाँ पर भी दिखाया गया है, सेल्स, सेल्स का ग्रुप जो होता है, देन टिश्यू, एंड देन सिस्टम, ऑर्गन, एंड देन ये है ऑर्गेनिज्म। ओके, सी नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर सेल्स, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ओके, लेट्स सी हियर, सो ये सेल्स क्या है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड। हर एक लिविंग थिंग किससे बना है, इस सेल से बना है, ये जो सबसे छोटा है दिखने में, स्ट्रक्चर में ये कैसे है सबसे छोटा है, बट उसी से ही क्या होता है लिविंग थिंग बनता है। कैसे, तो हम आगे देखते हैं, आवर बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ न्यूमेरियस सेल्स। हर एक जो सिस्टम है हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है हर एक का, उसमें अलग अलग क्या होते हैं सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स का ग्रुप बनके टिश्यूज बनते हैं, एंड टिश्यूज का डिफरेंट एक ग्रुप बनके क्या होता है हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, दे डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। तो कैसे होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, देन साइज एंड फंक्शन में, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं कि हमारी होल बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है, तो ये सेल्स भी कहते हैं कैसे होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उनके सेल्स का फंक्शन भी कैसे है डिफरेंट है। सेल्स ऑफ द सेम साइज, shape and function are grouped together to form a tissues। जैसे कि ये सेल्स है, इनका एक साथ फॉर्म क्या होता है टिश्यूज। ये जो अलग अलग है इनको हम सिंगल क्या कहते हैं सेल्स, बट जब ये ग्रुप में आते हैं तो ये क्या होते हैं टिश्यूज। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। देखिए जैसे कि मैंने कहा है ये क्या बना है एक ऑर्गन, सो इसका फंक्शन भी क्या है, ये जो ब्रेन है ब्रेन का फंक्शन भी अलग है, राइट। इट मींस यहाँ के सेल का फंक्शन भी कैसे है अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होगा सेल्स अलग होंगे, देन उसका ग्रुप जो बनेगा मींस टिश्यूज देन उनका ग्रुप क्या होगा एक अलग ऑर्गन होगा, अलग सिस्टम होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव उनका भी फंक्शन कैसे है अलग है। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या एग्जांपल दिया गया है, we can compare our body with the house। देखिए हम जहाँ पर रहते हैं हमारा हाउस, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी बॉडी से। कैसे, our cells are like bricks। जैसे कि हमारा घर किससे बनता है ब्रिक्स से, अगर ब्रिक्स नहीं है तो हाउस बनेगा क्या, नहीं। सो उसी तरह से हमारी बॉडी में भी सेल्स उसी तरह से काम करते हैं। हमारी बॉडी में अगर सेल्स नहीं है तो ह्यूमन बीइंग नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस ही हम देख चुके हैं कि हर एक लिविंग थिंग में सेल्स क्या होता ही है, सबसे छोटा है हमारे हाउस का भी वैसे ही हमारा हाउस दिखता बहुत बड़ा है, बट ये जो ब्रिक्स है वो बहुत छोटे होते हैं। बट इसे यहाँ पर क्या लेते हैं कि हमारा सेल्स कैसे है ब्रिक्स की तरह है,
टिश्यूज आर लाइक वॉल्स। फिर ये जो वॉल्स है वो कैसे बनती है? सो एक के ऊपर एक जब ब्रिक्स रखे जाते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है, तब ये क्या होती है? एक वॉल होती है। उसी तरह से ये टिश्यू हमें दिखाई देते हैं। देखो ये सेल्स है, मींस सिंगल ब्रिक्स है, देन ये टिश्यू वॉल के जैसे है। वैसे ही यहाँ पर है, एक के ऊपर एक जब ब्रिक्स प्रॉपर रखे जाते हैं वो क्या हो जाती है? वॉल। ओके, सेम है। टिश्यूज को किससे कंपेयर किया है? वॉल से। देन नेक्स्ट वन, एंड organs are like roofs of the house। जैसे हाउस है, हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन है, बेडरूम है, हॉल है। ओके, सो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी हर एक अलग अलग ऑर्गन्स है। जैसे आगे हम देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, सो हर एक रूम का, इट मींस हर एक सिस्टम का काम कैसे है, फंक्शन कैसे है, डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सेल अपनी बॉडी है किससे कंपेयर की गई है? हाउस से। किस तरह से? सेल्स कैसे होते हैं? ब्रिक्स की तरह। मतलब हमारे होल बॉडी में सेल्स होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हाउस अगर हमें बनाना है तो ब्रिक्स बहुत जरूरी है। देन टिश्यूज आर लाइक वॉल्स। फिर ये ब्रिक्स की प्रॉपर एक के ऊपर एक जैसे अगर हम रखते हैं तो क्या होता है? वॉल रेडी होती है। उसी तरह सेल्स का है, सेल्स का भी एक साथ एक फॉर्म होता है टिश्यूज। एंड देन ऑर्गन्स क्या है? रूम्स है। हाउस में जैसे भी रूम्स होते हैं अलग अलग, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी अलग अलग सिस्टम है। सिस्टम से जिसके फंक्शंस भी क्या है? अलग अलग है। इसके बारे में हम भी आगे देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। नाउ यहाँ पर हमने सेल्स के बारे में जानकारी ली है, ऑर्गन्स एंड जो डिफरेंट